ओके, अगला क्या है? 10 मीटर डीप लेक. The bottom is at constant temperature of 4 degrees Celsius. Okay. Temperature of air negative 4 degrees Celsius. The thermal conductivity of ice is okay. The linear expansion of water on freezing, the maximum thickness of ice is like this is ice, and it's at say it's some thickness T. This is 10 minus T. Okay, cool. And we just want to find out what this thickness is, so that this is constant temperature 4 degrees Celsius, and this is, well, yeah, air temperature is constant anyway. So let's do this thing. What do you know? The heat flow rate, that's gonna be, and also like this should be, I think, 0 degrees Celsius, right? Because that's the water ice interface. So it should be at 0 degrees Celsius, because that's what the gradient means. It has to be continuous. Temperature has to be continuous. So like whatever, next line would be the heat flow rate, which is, so it's the area times the conductivity. Well, conductivity of this guy, let's just say it's K. So it's K, and this would be 3K by that logic. K times A, I don't know what that A is. Delta T, in this case, our delta T is 4 degrees Celsius upon the length, which is sorry, is 10 minus T. This is also equal to, so this is the same thing as a heat flow rate through this guy. Now if there was still ice that was forming, or it was like there's ice that's melting, you would not equate these two. So क्या होना चाहिए था कि अगर इसमें से आइस मेल्ट हो रही है, सो इस मतलब जो हीट फ्लो रेट ये इंटरफेस से इस इंटरफेस में है, वो अपने को क्या बता रहा है, लाइक दैट्स कि कितनी क्या लाइक कितना हीट इसमें से निकल गया, राइट? कितनी हीट इसमें से चली गई, और यहाँ से यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हुई है वो इसमें हीट आई है. सो लाइक ये वाला हीट फ्लो रेट माइनस ये वाला हीट फ्लो रेट, वो अपने को बताएगा कि आइस कितना फास्ट मेल्ट हो रही है या फिर फ्रीज हो रही है. ओके, कूल, फाइन. बट इन दिस केस कुछ हो ही नहीं रहा है, सो ये इक्वल है. सो K टाइम्स A 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन 10 माइनस T, और यहाँ पे क्या है 3K टाइम्स A एंड 0 से -4, इट्स स्टिल 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन T. Okay, cool. So basically 1 upon 10 minus T equal to 3 upon T. यानी कि T equal to 30 minus 3T. So T equal to 30 by 4, which is 7.5, I think. Right. Okay, so that's the thickness of ice. Next, a spherical black body of radius r radiates power P, and its rate of cooling is R. Wait, what? Rate of cooling is R. So rate of cooling यानी कि negative D temperature upon dt, right? Okay. Spherical black body, radius R, radiates power P. Well, P is proportional to R squared, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रेडिएशन से हो रहा है. सो एरिया जितना बड़ा उतना ज़्यादा पावर रहेगी. सो लाइक ये तो ठीक है. रेट ऑफ कूलिंग R यानी क्या, लाइक P अपॉन दी मास, राइट? एंड ऑल्सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट मेनली वो मास चाहिए अपने को यहाँ पे, जो कि वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल है. और वॉल्यूम किससे प्रोपोर्शनल है? R क्यूब से. सो P अपॉन R क्यूब, बट P क्या R स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. सो ये जो चीज़ आएगी वो 1 upon R, like yeah, R is proportional to 1 upon R. All right, next, the temperature of an isolated black body falls from T1 to T2 in time T, then C be a constant. ओके, फाइन. सो क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा टी पावर 4 ये अपना, ओके, एरिया टाइम सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट
पावर 4, ये अपना बाहर कितनी अपन हीट रेडिएट कर रहे हो है, और ये अपॉन एम सी, दैट्स द कि तुम्हारा कितना टेम्परेचर का रेट क्या है डिक्रीज होने का. ओके फाइन. सो ये T1 to T2 है, राइट. लाइक दिस इज dt, I should say negative dt upon dt equal to this guy. Fine. So like negative dt upon t power 4 minus t naught power 4 equal to a sigma upon mc times t stuff. Right. अब मैं इसका क्या करूँ? I don't think ये इस टाइप से होगा. टी पावर 4 ही था, चाहिए था क्या अपने को? अब क्या मुझे सच में इंटीग्रेट करना चाहिए? नहीं, वॉट एवर, थिंक अबाउट इट मैन. वेट, आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी, तो कोई टेम्परेचर बाहर की, ओके ओके ओके. आइसोलेटेड यानी कि वो लाइक एटमॉस्फेयर का रेडिएशन उसके अंदर नहीं जा रहा है. सो इन दैट केस ये सिर्फ इतना ही है. सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. लाइक दिस इज नेगेटिव टी पावर नेगेटिव 4 डी टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो टी पावर नेगेटिव 3 अपॉन नेगेटिव 3. So this will be t power negative 3 upon 3, and it's going from T1 to T2 equal to a sigma upon mc times t, right? Cool. So this is gonna be, ये तो उधर भेज दो. So 3, so 1 by T2 cubed minus 1 by T1 cubed equal to some constant. It's like 3a sigma upon mc times t. सो इसको मैं उधर भेज देता हूँ ना, इसको मैं 1/c बोल देता हूँ इनफैक्ट, और इसको उधर भेज के इजी हो जाएगा. सो या लाइक इसमें क्यूब्स चाहिए अपने को, राइट. नेक्स्ट, अ प्लैनेट इज एट एन एवरेज डिस्टेंस t फ्रॉम द सन एंड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज t. Okay, assume that the planet receives energy only from the sun and loses energy only through radiation from its surface. Fine. Neglect atmospheric effects. Fine. If t is proportional to t power negative n, then the value of n is okay. Yeah. So ठीक है, तो जो planet है, just talk about this guy. इसके रेडियस को मैं r बोल देता हूँ, और ये डिस्टेंस d पर है. ये जो भी पावर होगी सन की, सो उसका कितना फ्रैक्शन इसको मिल रहा होगा? इसको मिल रहा होगा आर स्क्वायर्ड अपॉन डी स्क्वायर्ड ऑफ पी, राइट. इसको इतनी पावर मिल रही है और उतनी पावर उसको रेडिएट भी करनी पड़ेगी. सो ये पावर रेडिएटेड भी रहेगी, बट वो रेडिएट कैसे कर सकता है? वो सिर्फ या लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू ही कर सकता है. लाइक सिग्मा टी पावर 4 टाइम्स इसका सरफेस एरिया, लाइक 4 पाई आर स्क्वायर, राइट. या आई थिंक सो, दैट्स राइट. Its average surface temperature is T. Assume that the it receives only. Okay, cool. So ये जो P है वो तो सन पे डिपेंडेंट है और वो कांस्टेंट है. अपने को T के बारे में देखना है. ये गया, और ये सब तो कांस्टेंट है, इससे कोई टेंशन नहीं अपने को. ये भी कांस्टेंट है. सो लाइक T पावर 4 इज प्रोपोर्शनल टू D पावर नेगेटिव 2, या फिर T इज प्रोपोर्शनल टू D पावर नेगेटिव 1/2. सो N शुड बी 1/2 in that case. Next, the solar constant for the Earth is sigma. Solar constant is defined in energy received per unit area per second normally on the Earth. Fine. The surface temperature of the sun is T Kelvin. The sun subtends an angle of theta on the Earth. Wait, what? Sun subtends an angle theta at the Earth. वाह, ये समझा नहीं मुझे. ओह, सो लाइक ये सन है, बहुत बड़ा है, और ये अर्थ है, और ये एक एंगल थीटा इस पर सब्टेंड कर रहा है. और ये थीटा प्रॉबेबली सॉलिड एंगल नहीं है, ये नॉर्मल लीनियर एंगल थीटा है. ओके फाइन. ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन सन सब्टेंड्स एन एंगल थीटा एट द अर्थ.
मे बी इसका जस्ट मुझे यूज़ करके ये निकालना है कि लाइक फाइन, सो ये आर सन और ये अपना एक्चुअल में जो डिस्टेंस रहेगा उसमें डी बोल देता हूँ. So you can say that r sun time upon d, that's sine theta, right? Sine theta by 2 I should say. So it's approximately theta by 2 क्योंकि ये दोनों तो बहुत दूर हो गए एक्चुअल में. So yeah, like उस हिसाब से d जो है वो r sin theta 2r sin theta upon theta ऐसा लिखना चाहिए मुझे. So d is inversely proportional to theta. Fine. और पावर जो रहेगी पावर टाइम्स well yes like 4 pi r square. पावर अपॉन ये जो पूरा रहेगा डी स्क्वायर, आई शुड से 4 पाई डी स्क्वायर, वो पूरा आ जाएगा. और दैट टाइम्स जो सरफेस एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर सरफेस पे ये गिरा है विच इज़ कि अपने को इसका रेडियस आर अर्थ बोल देते हैं. सो लाइक टाइम्स पाई आर स्क्वायर्ड, लाइक पाई आर अर्थ स्क्वायर्ड, राइट. ये इसका सोलर कांस्टेंट है, दैट इज सिग्मा. कूल. और राइट और पावर क्या मतलब पावर इज जस्ट इट्स एरिया 4 पाई आर सन स्क्वायर्ड टाइम्स सिग्मा टाइम्स टी पावर 4, राइट. सो सिग्मा इज proportional to r sun का स्क्वायर्ड एंड टेम्परेचर पावर 4 r अर्थ का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. बट वंस अगेन अपन d को ऐसा लिख सकते थे 2r, सो लाइक d इज proportional to r sun squared upon theta squared, right? Yeah, I think so. So ये तो कैंसिल हो गया, like theta squared उधर चला जाएगा. So sigma is proportional to t power 4 r earth squared and theta square. And yeah, this should be this. Fine. Next, a wave is represented by the equation y equal to a sine of all that stuff, where x is in meters and t is in time. Okay, fine. The expression represents, so पॉजिटिव x नहीं नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है वेव. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज जस्ट 15 पाई अपॉन 10 पाई, राइट, विच इज 3/2. सो 1.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, and it is in the negative x direction. Yep. Wavelength is, so like this guy 10 pi is just 2 pi by lambda. So lambda is 1/5 which is 0.2. so ये भी correct है. Alright, next, a wave is represented by the equation y equal to a sine जो भी है. The frequency is n and wavelength is lambda. Okay, fine. So frequency यानी कि like 2 pi n, that is 314 upon 0.5, right, something like that. और 314, अगर 3.14 होता तो मे बी बेटर रहता, राइट. एनीवे, सो 2 pi is just 2 into 3.14. सो यहाँ से ये गया, यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ से 50. दिस इज़ लाइक 10 upon 0.1 which is 100. So frequency 100 hertz है probably. Yeah. और wavelength क्या है? So just got 2 pi by lambda, that is 2 into 3.14 upon lambda. That is 314 upon 100. So यहाँ से जो 100 है, like ये गया, lambda is just 2. A plane progressive wave of frequency 25 hertz, amplitude something, initial phase 0, plane progressive wave. Oh, so like plane front के साथ में जो है, ठीक है. And initial phase 0 moves along the negative x direction
with a velocity of 300 meter per second. Fine. If A and B are 2 points 6 meter apart on the line of propagation of the wave. Okay. At any distance, at any instance, the phase difference between A and B is phi. The maximum difference in their displacements at A and B is delta. Okay. Maximum difference. A and B are 6 meter apart. Velocity जो है that is 300. अपना जो distance है that is 6 meter. Amplitude 2.5 into 10 power negative 5. अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है. Frequency normal frequency, angular frequency नहीं. Frequency 25 hertz है. Fine. So yeah, like C by F, so 300 by 25 which is 12. ये अपनी वेवलेंथ है और D6 यानी कि वो वेवलेंथ बाय 2 है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ए और बी के बीच में. वेट नहीं, ए और बी के बीच में फेज एंगल लैम्डा बाय 2 है. सॉरी फेज डिफरेंस पाई है, ऐसा बोलना चाहिए. राइट. या इंटरफेरेंस है ही कहाँ, मतलब वो चल ठीक है. सो हमें क्या करना है कि लाइक ए साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर ए का मैं बोल दूँ सो दूसरा जो बी रहेगा उसका ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. बट फाई है क्या, लाइक ओमेगा टी प्लस पाई बेसिकली. राइट. दूसरे का जो वाई वैल्यू है या फिर जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल अपना चेंज हो रहा है, वो इस टाइप के फॉर्मेट पे रहेगा. और ये बेसिकली क्या है, ये है नेगेटिव ए साइन ऑफ ओमेगा टी. सो जब डिफरेंस है दैट इज़ लाइक 2a साइन ऑफ स्टफ. सो जो मैक्सिमम डेल्टा रहेगा वो 2a रहेगा. राइट. विच इज़ 5 into all that. So that's nice. And phase is pi. Okay, next. A sound wave passes from a medium A to medium B. The velocity of the sound in B is greater than in A. Sound wave propagates, passes from a medium A to B. Velocity of sound in B is greater than in A. Assume that there is no absorption or reflection at the boundary. Wait, what? Okay, there is no absorption or reflection at the boundary. There's only transmission, I guess. ये अजीब है. As the wave moves across the boundary, the frequency of sound will not change. Yeah, that's right. Wavelength will decrease, but frequency तुम same रख रहे हो, but जो speed है, velocity of sound in B is greater, right? So wavelength should increase, I think, क्योंकि speed हमें increase करनी है. Wavelength will increase. The intensity of sound will not change. I don't know. Intensity of sound, मतलब तुम बोल तो रहे हो, but लाइक मे बी तुम्हारा एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा. और या इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज. मे बी करेक्ट है, मे बी नहीं करेक्ट है, क्योंकि तुमने कहा है कि कोई रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. सो प्रोबेबली ये सही है. राइट. प्रोबेबली पूरा का पूरा जगह ट्रांसमिट होने वाला है, सो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए. नहीं, आई थिंक सो. सो I will say कि intensity will not change. I know मैंने पूरा मैथ्स किया नहीं है इसके लिए. और like whatever. Next. A transverse sinusoidal wave of amplitude A, wavelength lambda, frequency f is traveling on a stretched string. The maximum speed at any point on the string is v by 10, where v is the speed of propagation of the wave. Okay, cool. ट्रांसवर्स वेव. सो जो स्पीड है वो या वर्टिकल है. फाइन. इफ a equal to 10 power negative 3, v equal to 10 meter per second, then lambda and f are given pi. Okay, fine. So
एम्पलीट्यूड अपने को पता है. वट डू यू नो कि अगर पास में y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स वो सब है. तो इसका मुझे टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो यू जस्ट हैव v इक्वल टू a ओमेगा कोसाइन और वो सब. सो लाइक जो मैक्सिमम है वो ये एम्पलीट्यूड है. सो लाइक a ओमेगा इज v बाय 10, v बाय नहीं c बाय 10 बोलते हैं ना, राइट. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. बट अपने को पता है कि c जो है c इज़ प्रेटी मच जस्ट ओमेगा अपॉन k, राइट. या यस दैट्स राइट, दैट्स वेरी राइट. इनफैक्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे. अपने को लैम्डा और f में चाहिए. सो c इज़ लैम्डा टाइम्स f और ओमेगा जो है दैट इज़ 2 पाई बाय लैम्डा. सॉरी 2 पाई टाइम्स f, राइट. सो ये कैंसिल हो गया. जस्ट हैव लैम्डा इक्वल टू 20 पाई a. सो दैट इज़ 2 पाई इंटू 10 इंटू a और a अपना 10 पावर -3 है. सो दिस इज़ 10 पावर -2 मीटर. सो दिस इज़ लैम्डा और अपने को अब f भी चाहिए. अपने को v की वैल्यू पता नहीं है यार, लेकिन हाँ अपने को v की वैल्यू पता नहीं है. ओह अच्छा है, पता है अपने को. सो v इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. सो f विल बी v बाय लैम्डा which is 10 upon all this stuff. So 2 pi into 10 power -82 which is 10 power 3 के ऊपर जाके upon 2 pi. Yeah, so that's about right. Next, when an open organ pipe resonates in its fundamental mode, then at the center of pipe, okay, open organ pipe, fundamental mode ऑफ कोर्स ये इस टाइप का सबसे छोटा जो होगा, राइट. सो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर नोड है, ये भी तुम्हारा एक प्रेशर नोड है और ये तुम्हारा प्रेशर एंटी नोड है, राइट. यस ओके कूल. मुझे उल्टा लिखना चाहिए एक्चुअली में कि ये प्रेशर नोड है, ये भी एक नोड है और यहाँ पे तुम्हारा एंटी नोड है. ओके द गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो वाइब्रेशन. ओके इन द सेंटर ऑफ पाइप तुम्हारा प्रेशर एंटी नोड है और डिस्प्लेसमेंट नोड है, राइट. सो द गैस मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं. द प्रेशर ऑफ गैस इज अंडरगोइंग वाइब्रेशन इज कॉन्स्टेंट. नहीं, प्रेशर ऑफ गैस अंडरगोज मैक्सिमम वेरिएशन. द गैस मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, मतलब ये बोलना सही नहीं है कि वो रेस्ट पर है, बट ऑन एवरेज वो रेस्ट पर है. Okay, next, a whistle emitting a sound of frequency 450 Hz approaches stationary observer at speed 33. Velocity of sound is 330. Okay, just write it down. Velocity of sound is 330. Whistle emitting a sound of frequency 450 Hz approaches stationary observer. So V observer is 0 and V source is along the speed, along the sound of course. So 33 frequency heard by the observer. ये घटिया है. So C minus V observer upon V source, ऐसा ही कहता है ना. लाइक या थिंक अबाउट इट कि अगर ऑब्जर्वर या अगर V ऑब्जर्वर पॉजिटिव हो जाता है, लाइक तब क्या होगा, तब फ्रीक्वेंसी कम होगी. मेक सेंस. या और जब सोर्स साउंड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए. इसमें एक सेंस क्योंकि छोटा हो जाएगा और फिर वो फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी. ओके सो वी ऑब्जर्वर तो 0 है और वी सोर्स अपने को पता है, अपने को सी की वैल्यू पता है. कर सकते हैं अपन 330 अपॉन 330 माइनस 33 टाइम्स एफ इज़ 450. So this is like 10 by 10 upon 10 minus 1, right? So 10 by 9 into 450 और वो जाएगा 500. So 500 Hertz is the frequency.
Right, next. A bus is moving with velocity of 5 meter per second towards a huge wall. The driver sounds a horn of frequency. Okay. V V bus is 5 meter per second towards a huge wall. The driver sounds a sound of frequency 165 hertz. If the speed of sound is 335, number of beats, oh god, number of beats heard per second by a passenger on the bus is, जस्ट ड्रॉ दिस, ये जो पैसेंजर है ये ओके लाइक जो सोर्स है वो भी तो इनफैक्ट सो दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और यहाँ पे एक वॉल है राइट। सो जो सोर्स है अगर वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है तो वेवलेंथ जो रहती है वो एक्चुअल में कम होती है राइट। सो जो भी वो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ वाली साउंड एमिट होगी और वही वेवलेंथ वाली साउंड रिफ्लेक्ट होगी। सो या वो इस सोर्स को सुनाई आएगी और दूसरी साउंड डायरेक्टली इसको सुनाई आएगी, मतलब वही सेम फ्रीक्वेंसी वाली जो इसने एमिट की थी, सेम फ्रीक्वेंसी वाली ऐसा बोल सकते हैं। आई मीन ओके इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी सो मे बी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देनी चाहिए अपने को, बट देन 1 सेकेंड ये 20 से मूव कर रहा है सो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। सो पहली फ्रीक्वेंसी ये जो सुनता है ये वाला ऑब्जर्वर दैट इज़ एफ, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी ये सुनता है दैट इज़ लाइक कि सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी टाइम्स एफ। सी माइनस वी क्योंकि लैम्डा वो चेंज हो गया और सी प्लस वी क्योंकि अब ये साउंड इसके तरफ आ रही है या सो जो बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो इनका डिफरेंस। सो सी प्लस वी माइनस ऑफ सी माइनस वी यानी कि 2v अपॉन सी प्लस सी माइनस वी। ओके राइट, दिस इज़ द बीट फ्रीक्वेंसी और ये अपने को कैलकुलेट करना है। सो 2 टाइम्स 5 अपॉन सी क्या है अपना 335 माइनस v इज़ जस्ट 5 एंड दैट टाइम्स 165, ये अपनी बीट फ्रीक्वेंसी है। लाइक 10 अपॉन दिस इज़ गोइंग टू बी 330, दिस इज़ लाइक 11 इंटू 15 एंड दिस इज़ 330 इज़ जस्ट 30 इंटू 11 गया और ये 2 हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 5। Next, a railway engine whistling at a constant frequency moves with constant speed. It goes past a stationary observer standing beside the railway track. Railway engine, okay. Constant frequency. Okay, fine. The frequency n of the sound heard by the observer is plotted against time t. Which of the following best represents the resulting curve? ये सही नहीं होगा क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है उसके बिसाइड है ना वो, लाइक इस टाइप का होगा ये राइट। तो ये जो डिस्टेंस है वो निग्लेजिबल नहीं है कि है, अगर निग्लेजिबल है तो अपन इस टाइप का बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और फिर वो अचानक से मतलब थोड़ा सा स्मूथनेस इसमें होनी चाहिए, प्रॉबेबली इस टाइप का कुछ तो भी रहेगा। सो या मतलब अनलेस एंड अनटिल कि वो डायरेक्टली इसके सामने है, हाँ तब लाइक वो पता नहीं किस टाइप से होगा, बट अगर उसके सामने रहता तो फिर ये वाला ग्राफ करेक्ट होता, बट वैसा नहीं है। बट वी नो कि जब वो बहुत दूर है, लाइक जब ये इन्फिनिटली दूर है तब इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी या लाइक हाँ कुछ और तरीका है क्या इसमें? इससे में भी अपन ये जो सोर्स है लाइक ओके फाइन, ये डिस्टेंस कुछ तो भी d बोल देते हैं और ये x बोल देते हैं इसको राइट, ये और ये 0 पॉइंट बोल देते हैं इसको। इनिशियली x नेगेटिव है और यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट अपन सिर्फ वेलोसिटी का कंपोनेंट देखेंगे जो कि इस डायरेक्शन में राइट। जनरली इस टाइप का प्रॉब्लम सब ऐसे ही सॉल्व कर देगी, जब फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी बड़ी हो तो अपन इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि या ओके। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका कोसाइन थीटा क्या होगा, बेसिकली इसका कोसाइन थीटा होगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
सो दैट टाइम्स वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये इसके अलॉन्ग इज लाइक सी, ओके, 1 सी अपॉन सी माइनस ये पूरी जल्दी सी चीज़ टाइम्स फ्रीक्वेंसी, राइट? या मेक सेंस। हाँ बट ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट द थिंग इज़ कि ये स्मूथ है, राइट? ये ऐसा नहीं कि ये डिसकंटिन्यूस हो गया अचानक से, और ऐसे एब्रप्टली तो बिल्कुल भी नहीं। सो जब x इन्फिनिटी है, लाइक ऐसा कुछ तो भी है, लेट्स सी, प्लस डी बाई एक्स का स्क्वायर। सो जैसे x इन्फिनिटी अप्रोच करेगा ये चीज़ तो गायब हो जाएगी और वी विल जस्ट गेट सी अपॉन सी माइनस वी, लाइक दैट। सो ये एक कांस्टेंट है, राइट? और फिर बाद में थोड़ा लाइक प्लस हो जाएगा, क्योंकि या वेट नहीं, इनिशियली वहाँ पे माइनस चाहिए, तो इनिशियली प्लस होगा फिर बाद में माइनस होगा। सो एनीवे, वेट मैं सही तो बोल रहा हूँ ना? वेट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा, मैंने वो x जो है वो साइन नहीं लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर वो नेगेटिव ही ठीक था, बट लाइक वॉट एवर, यू गेट इट, ये प्रॉबेबली सबसे अच्छा ग्राफ है और ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें या ये नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ओके, एनीवे नेक्स्ट, assume that the sun rotates about an axis through its center and perpendicular to the plane of rotation of the earth about the sun. Oh, fine. The appearance of the sun from any point on the earth is shown. Light belonging to a particular spectral line is received from the points A, B, C, D on the edge of the sun. Huh? ओके ओके, सो तुम्हें इसमें डॉपलर इफेक्ट यूज़ करना है बट लाइट पे। ये और ज़्यादा अजीब है। सो द थिंग इज़ कि जो सन है वो उसकी सरफेस बहुत फास्ट मूव कर रही है, ऐसा अपन सोच सकते हैं शायद। मुझे पता नहीं डेटा कैसा है, बट द थिंग इज़ कि ए और ये जो ए पॉइंट क्या है, ये डी है, सो लाइक ये बी और ये सी होगा। सो ए और सी पे वेवलेंथ सेम है, और डी वाला जो पॉइंट है वो दूर जा रहा है अपन से, राइट? तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, सो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट अपने पास में आ रहा है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो फ्रीक्वेंसी में बी इज़ बिगर देन ए इक्वल टू सी विच इज़ बिगर देन डी। या राइट। Light from all 4 points have same wavelength? No. Light from C, अच्छा अपने को वेवलेंथ का देखना है, सो B लेस देन ए सी लेस देन डी। लाइट फ्रॉम C हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ देन लाइट फ्रॉम D, नहीं ये गलत है, लाइट फ्रॉम D हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ देन लाइट फ्रॉम C, yes that's correct. Light from A has same wavelength as light from B, that's wrong. Alright, next. 4 identical charges are placed at the points 1 0 0 0 1 0. Okay, fine. The potential at the origin is 0. अच्छा, तो z कोऑर्डिनेट हर इसमें 0 है, सो हम इस चीज़ की बात करें कि 1 0 यहाँ पर है, 0 1 यहाँ पर, फिर ये ऐसा एक, फाइन, ऐसे 4 चार्जेस है। ओके कूल। दी फील्ड एट द ओरिजिन इज 0, ये सही रहेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल चार्जेस है। पोटेंशियल 0 नहीं है। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द जेड एक्सिस अदर देन ओरिजिन इज 0, नहीं। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन दी जेड एक्सिस अदर देन ओरिजिन एक्ट्स, सॉरी द फील्ड अलॉन्ग फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द जेड एक्सिस अदर देन जेड एक्सिस, यस दैट्स राइट। लाइक अगर तुम एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हो तो सारे जो एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं वो कट जाएगी और सारे जेड कंपोनेंट्स बचेंगे, सो राइट। द फील्ड एट द ओरिजिन इज 0, दैट्स राइट।
All right, next. Four charges, all of the same magnitude, are placed at the four corners of a square. At the center of the square, a potential is V. The field is E. E तो zero है. By suitable choices of the signs of the four charges, which of the following can be obtained? So V is not equal to 0 and E is equal to 0. Wait, नहीं. Which of the following can be obtained? Okay, ये अजीब है क्योंकि सारे सेम मैग्नीट्यूड के बट सेम चार्जेस हैं. ये ऐसा नहीं बोला, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं. ये सही नहीं हुआ. फाइन. सो इन दैट केस अपन पोटेंशियल बी ज़ीरो रख सकते हैं और फील्ड को अपन नॉन ज़ीरो रख सकते हैं. सो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है. राइट. नेक्स्ट. A neutron and an alpha particle are placed in an electric field. The forces acting on them are F1 and F2 and their accelerations are A1 and A2 respectively. ये क्या है? An alpha particle. So दोनों का मास 2 रहता है ना? Wait, नहीं. हीलियम का मास 4 रहता है. So न्यूट्रॉन यानी कि या जिसमें चार्ज प्लस है, +1, बट इसका मास जो है वो 1 एटॉमिक यूनिट नहीं है, 2 एटॉमिक यूनिट है. और ये न्यूट्रॉन है. और ये क्या है? एक अल्फ़ा पार्टिकल जिसका चार्ज +2 है और मास 4 एटॉमिक यूनिट से. अच्छा ठीक है, वो चार्ज बाय मास रेशो सेम है, मतलब कि एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी. ओके. और फोर्सेस सेम नहीं हो गए. सो लाइक इस पे कम फोर्स है, इस पे ज़्यादा फोर्स, इस पे इनफैक्ट डबल फोर्स है. So F1 is not equal to F2. All right, next. Let V and E be the potential and the field respectively at a point. Which of the following assertions are correct? If V equal to 0, E must be 0. That's just wrong. If E not equal to 0, V cannot be 0. Well, it can be 0. What's the problem? So which of the following assertions are correct? ये तो correct नहीं है. If V is not equal to 0, E cannot be 0. That doesn't make sense, man. E can be 0. What's the big problem? So यार ये चारों के चारों ये सारे के सारे इनकरेक्ट है. None of these. Oops. In uniform electric field, all points are at the same potential. Uniform electric field. Okay, all points are at same potential. ये थोड़ा अजीब है. नहीं, no two points can have the same potential. well, ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट्स के सेम पोटेंशियल अगर तुम फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो तो. पेयर ऑफ पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस मस्ट हैव द सेम नहीं यार, वापस नन ऑफ दीज. ऑल राइट. और पहली बात तो कि तुम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में पोटेंशियल ये लाइक डिफाइन कर नहीं सकते. तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यूज़ करना पड़ेगा. और सो ये बोलना कि सारे सेम पोटेंशियल पर है वो लाइक अजीब है. नेक्स्ट. अ स्फेरिकल कंडक्टर ए लाइज इन अ hollow spherical conductor B. Charges Q1, Q2 are given to A and B respectively. Okay. So this is A, जिस पे चार्ज क्या है? Q1 और इस पे चार्ज Q2 है और ये spherical conductor है. Charge Q1 will appear on the outer surface of A. well, E का छोड़ते अपन B का देखते पहले. तो B की इनर सरफेस पे अगर अपन -Q1 चार्ज डाल देते हैं तो E का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा इसके अंदर और आउटर सरफेस पे Q2 + Q1 चार्ज डाल देंगे. राइट. सो चार्ज Q1 + Q2 विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ B. येस. चार्ज -Q1 विल अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ B. येस. चार्ज Q1 और E का सारा चार्ज बाहर फेंक दो. सो चार्ज Q1 विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ A. Right, next. A parallel plate capacitor is charged from a cell and then isolated from it.
separation between the plates is now increased. Charge from a cell and then isolated. The force of attraction between the plates will decrease. मतलब तो उन्होंने दूर कर दिया, ऐसा हो सकता है ना, लाइक हर प्लेट की वजह से एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होगी. सो लाइक कंसिडर कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से जो भी यूनिफॉर्म फील्ड थी वो नहीं. फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स क्यों डिक्रीज़ होगा यार? नहीं, फोर्स डिक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड कांस्टेंट रहती है एक इन्फिनिट सरफेस के लिए, राइट. सो ये तो गलत है. द फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स विल नॉट चेंज, ये सही है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल इंक्रीज, येस ये सही है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज, नहीं डिक्रीज नहीं होगा ना यार, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फील्ड सेम है बट डिस्टेंस बढ़ गया है. सो डी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, व्हेन अ चार्ज ऑफ अमाउंट Q is given to an isolated metal plate X of surface area A, its surface charge density becomes sigma 1. Okay. When an isolated identical plate Y is brought close to X, the surface charge density on X becomes sigma 2. Huh? This doesn't make sense though. Isolated है ना. Brought close to X, the surface charge density on X becomes sigma 2. Y is earthed, surface charge density becomes, सारे इक्वली तो हो गए यार. लाइक या Q1 is Q upon A, Q3 इज ऑल्सो द सेम थिंग. तुमने बस अर्थ कर दिया. फ़र्क क्या है? और Q1 भी इक्वल टू Q2 हो जाएगा. व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? 71st. Okay, in an isolated parallel plate capacitor of capacitance C, the four surfaces have charges Q1, Q2, Q3 and Q4 as shown. Okay, the potential difference between the plates is okay, the potential difference between the plates is, अपने को पता है कि ये चीज़ रहेगी, just know this, but गड़बड़ है ना इसमें. वेट, यहाँ पे 1/2 भी होना चाहिए था ना, क्योंकि जब Q और Q ऐसे रहते हैं, मतलब ये Q ये यहाँ पे -Q टाइप का, तब जो पोटेंशियल रहता है उसको अपन Q/C से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो इस केस में तुम्हें Q3 -Q2, ये सही नहीं है ना यार, इसमें तुम डबल काउंट कर रहे हो. 1/2 होना चाहिए यहाँ पे. फाइन. एनीवे, व्हाट वी नो इज़ कि इनके अंदर जो सरफेसेस, मतलब इनके अंदर फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए. फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे फील्ड क्या है. सो वी नो दैट Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, एंड वी ऑल्सो नो दैट Q4 शुड बी इक्वल टू Q3 प्लस Q2 प्लस Q1. दैट्स व्हाट वी नो. और ये आइसोलेटेड है, सो गारंटी नहीं है कि यहाँ पे फील्ड कुछ मतलब ज़ीरो वगैरह होगी क्योंकि वो आइसोलेटेड है. सो या ये चीज़ तो होनी चाहिए एटलीस्ट. ओके कूल. सो इसका क्या, मे बी इनको ऐड करके देखते हैं. इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सो ये कट जाएगा और यहाँ पे ये भी कट जाएगा. सो जस्ट हैव Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0. ओह वियर्ड, Q2 प्लस Q3 0 है.
So putting that over there, you have Q1 equal to Q4. Okay, fine. तो Q1 इक्वल टू Q4, इसका मतलब है कि ये क्या है, यहाँ पे माइनस क्यों दिया है? नहीं, फिर तो ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे सिमेट्री ब्रेक हो रही है. ओ वेट, लाइक यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए. दिस इज जस्ट रॉन्ग. Q3 अपॉन C, वो Q2 प्लस Q3 0 है, और अपने को पता है कि अपने को सिर्फ Q1 प्लस Q2 माइनस अपॉन 2A sigma upon 2 epsilon naught, right? So 2A epsilon naught upon 2A epsilon naught upon 2 epsilon naught, ये जो रहेगी ये चीज़ एक्चुअल में अपना लाइक पोटेंशियल डिफरेंस बताएगी, राइट? कैपेसिटेंस C जो रहेगा, C इज़ लाइक कैपेसिटेंस C इज जस्ट Q अपॉन लाइक ओके Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. जब यहाँ पे तुम्हारा प्लस Q है और यहाँ पे तुम्हारा माइनस Q है, तब की जो मतलब फील्ड रहेगी वो ये रहेगी. एक्चुअली में ये सब टाइम्स D, सो दिस टाइम्स D अपॉन Q, सो ये चला जाता है. सो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये अपना कैपेसिटेंस होता था, राइट? बट यहाँ पे ऑब्वियसली वो हाफ वाली चीज़ से स्टिल है, सो दिस इज़ हाफ ऑफ लाइक हाफ कैपेसिटेंस इनटू, नहीं हाफ कैपेसिटेंस नहीं, कुछ तो ये और कर दिया मैंने. ये क्या, ये V बाय Q हो गया, ये 1/C हो जाएगा, सॉरी. सो 1/2C इंटू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस माइनस Q4, राइट? ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा. अच्छा, अब अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि Q1 इक्वल टू Q4 है, सो ये तो गया, और अपने को सिर्फ Q2 माइनस Q3 चाहिए. बट अपने को क्या पता है कि Q2 प्लस Q3 जो है वो 0 है. सो मैं या माइनस Q3 को मैं Q2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली. सो उसको मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा. सो जस्ट गेट Q2 अपॉन C लाइक दैट. सो ये दोनों करेक्ट है इनफैक्ट. और Q1 प्लस Q2 अपॉन C, आई डोंट नो यार, ये अजीब है. ओके, एनीवे नेक्स्ट. In a parallel plate capacitor of plate area A, plate separation and charge Q, the force of attraction between the plates is F. Okay. Plate separation, charge Q. Plate separation क्या? अच्छा, plate separation D होगा probably. Charge Q, the force of attraction between them is F. Well, F is proportional to Q square for sure. F is proportional to, चलो F कैलकुलेट कर लेते ना. F इक्वल टू sigma upon 2 epsilon naught. Sigma is just Q upon A and then 2A epsilon naught, right? That force times the charge on, wait, ये field है, sorry. ये force नहीं, so ये field times that charge, so Q square, right? Looks right. So it's inversely proportional to E. Cool. D का इसमें कोई रोल नहीं है. Right, cool. D का सच में कोई रोल नहीं है. Next, the capacitance of a parallel plate capacitor is C naught when the region between the plates has air. This region is now filled with a dielectric slab of dielectric constant K. Okay, the capacitor is connected to a cell of EMF E and the slab is taken out. Okay, the slab is taken out, fine.
external agent has to do something amount of work to take the slab out. क्या सच में एक्सटर्नल एजेंट को कोई काम करना पड़ा होगा? आई मीन ओके, उस पर चार्जेस डेवलप हो गए ना स्लैब पे, मेजरली वही चीज़ अपन निकाल रहे. सो फोर्सेस तो है उनके बीच में, बट देन वंस अगेन वो फोर्सेस एक्चुअल में पैरेलल लगने वाले हैं, नॉट सो लाइक या ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है धीरे धीरे. एनीवे बहुत सारा बच्चा लगता है. फाइन, यू नो व्हाट, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. यहीं पे रुकता हूँ.